Nishant, welcome to the second episode of our Neighborhood Flicks, in which we are with our friendly neighborhood celebrity chef Nishant Choi. Thank you. Nishant, during COVID, a lot of people were compelled to cook a whole lot of things in their Correct. kitchen. Yes. मतलब सब कुछ बंद था तो उन्होंने अपने घर में रसमलाई से लेके तीरामिसू तक ट्राई किया, सारी बिल्कुल। एक्सोटिक डिशेस ट्राई करी. कुछ ऐसे लोग थे जिनको अपनी बारी में ये एहसास हुआ कि दे आर फैंटास्टिक कुक्स और उन्होंने अपने किचन से ही केटरिंग शुरू कर दी अपने कंडोमिनियम में Right. लोगों के लिए हर चीज़ें आसान करने के लिए. कुछ लोग थे जब कोविड में लोग बहुत ही बीमार थे और दे वर बेडरिडन, तो उन्होंने सर्विस शुरू कर दी कि अगर आप इतने बेडरिडन हैं हम आपके घर तक खाना पहुँचाते करेक्ट हैं. करेक्ट. ठीक है. उसके बाद कुछ लोग बहुत एम्बिशियस हो गए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जितनी जल्दी ये सब आए उतनी जल्दी अब जबकि पूरा लॉकडाउन लिफ्ट हो Correct. चुका है, लाइफ इज नॉर्मल, मैं देख रही हूँ उनके इश्तेहार वांटिंग टू सेल क्लाउड किचन Yeah. ऑन एज इज वेयर बेसिस, सारा इक्विपमेंट उठा ले जाइए, पूरा टेक ओवर कर ले. No, I think it was more like a makeshift arrangement during that time कि people who were passionate उनको लगा कि वो कुछ कर सकते हैं, कुछ प्रूव कर सकते हैं और उन्होंने अपने पैशन को बेसिकली क्लाउड किचन में इसलिए भी चेंज किया क्योंकि क्लाउड किचन इज ए लेसर इन्वेस्टमेंट F&B, you know, it doesn't require so much of investment जो कि आप रेस्टोरेंट खोलने में लगाते हो और licensing has become very very easy, so it is not too much to open up a cloud kitchen, but do we can they sustain? Sustenance is a big issue because once everything was open, the schools were open, and F&B एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ आपको फुल टाइम रहना पड़ता है. Then only it will sustain. You know, you can't so much delegate your work that work starts suffering. So I think because of that repercussion, when everything started opening and people have places to go by, cloud kitchen format started going down. Okay, and there, if there is no business, then there is hardly any survival, right? And then we are into this period of time when F&B is booming right now. The restaurants are booming. Every now and then I can see a new venture opening up in India or probably outside India as well. So because of that, the downfall is started for cloud kitchen. But still, I would say cloud kitchen has a great future because अगर आप सस्टेन करोगे, अगर आप वहाँ पे हमेशा रहोगे, आप अपनी चीज़ों को मॉनिटर करोगे, अपने हाथ से बनाओगे. मैं कुछ लोगों को ये भी जानता हूँ जो कि जिन्होंने स्टार्ट किया और आज के दिन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हैं बिकॉज वो हमेशा वहाँ पर रह के वो चीज़ों को अपने हाथ से कर रहे हैं. दे आर नॉट डेलीगेटिंग इट. सो वंस यू स्टार्ट डेलीगेटिंग इट एंड इफ इट डजंट वर्क आउट, यू आर इन ए यहाँ बैड पे गेम. एक बड़ा अहम सवाल उठता है कि क्या उन्हीं लोगों को ये किचन केटरिंग शुरू करनी चाहिए जिन्हें खुद खाना बनाना आता है? 100%. यू कांट बी एन एंटरप्रेन्योर कि मैंने इसको एम्प्लॉय किया, इसे एम्प्लॉय किया और पैसा Kiran, it is not only about making food. It is also about other things. Accounting. Okay, your P&L. Are you good with accounts? If you are not, don't get into it. Because as an entrepreneur, you are expected to run a business like business, not only as a chef. If you want to just make good food, then be at your, join some work, something like that. But then don't open the place. You have to be good to your numbers. You have to be good to your calculation. You have to good at food as well, and you have to know all the nitty-gritty that is required to run a successful business. But when it comes to running your own little cloud kitchen, क्या ज़रूरी है कि आपको होटल मैनेजमेंट और फूड और केटरिंग में आपने कोई क्वालिफिकेशन लिया हो या हाउस वाइफ्स, हाउस शेफ्स कैन आल्सो डू इट? I mean, it is not mandatory to obtain a degree. Of course, there is a difference to what qualified chefs are and non-qualified, but there is ample amount of opportunity. I have seen a person in Singapore. His restaurant has got Michelin. He's a hawker. He sells chicken satay every day with same SOP, with same standard, with same frequency, and now he's a Michelin star chef. Wow. So it is not important to get a degree, but of course if you have degree, it's very handy because then you have the perfect attitude to become the right entrepreneur. You will get that courage in you to stand in front of so many people and address it very nicely, technically and practically both. Okay, but here I would like to ask you one more question. क्या ये ऐसी बात है
जो लोग स्ट्रीट फूड से बहुत अट्रैक्टेड होते हैं और उनका अभी भी वो एक पैशन स्ट्रीट फूड के लिए कम नहीं हुआ है। मतलब जो आदमी अपनी वो रेहड़ी पे चाट बेचता है या जो रेहड़ी पे अपने भुने हुए चने बेचता है, वो पहले भी कामयाब था, अब भी कामयाब है। Correct. तो उसकी क्या ऐसी रेसिपी में खास बात है? The streets are always the backbone of a country. ओके। Okay, you find I think this is quite right. I mean, as a chef also, when I travel, I first go to the streets. ओके। Even if to Southeast Asia, when you go, Mm. you love to look at the streets and eat those beautiful fruits and beautiful flair of stuff. पहले तो ये बहुत आसान होता है. हाँ। Going to a restaurant, you have to be perfectly ready. Yeah. You have to plan it out. You need you need cab. You need a lot of facility to go to a restaurant, right? Street क्या है कि मैं बाहर निकला, street आ गया. It's quite easy. Also, it's very economical to eat in the street. Also, you get variety of stuff in one place. इट इज नॉट दैट आपको एक बंदा मिलता है वहाँ पर, आपको स्ट्रीट है तो पूरा. अगर आप डोसा खाओ तो भी मिलेगा, अगर आप थाई चिकन खाना चाहो तो वो भी मिल रहा है. एवरीथिंग एंड क्वाइट इकोनॉमिक, इट्स अ पैकेज. सो एवरीवन लाइक्स टू गो टू अ प्लेस व्हिच हैज गॉट variety, which is economical, which is very convenient, which is very comfortable. You don't need dressing, I mean, I think because of that. अब इसी बात को रिकग्नाइज करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बहुत पहले, 2 साल पहले तो बात हुई थी कि स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अपने पैरों पे खड़ा हो और अपने आप अपना कुछ काम शुरू करो, उसमें Correct. कमाई है. Yes. और उन्होंने किया है या शायद ये आपके बिजनेस के जो कंट्रोलर्स हैं उन्होंने किया है कि अब स्ट्रीट फूड वाले जो हैं, खोमचे वाले हैं, वो भी अपना खाना स्विगी और जोमेटो कर के सकते थ्रू हैं. डिलीवर करवा सकते हैं. बिल्कुल. तो इस पे जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं अभी आपको, उनको आप बिजनेस टिप्स दीजिए कि वो कैसे और अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं. बिल्कुल. स्विगी, जोमेटो, ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो एक बहुत अच्छा टूल है अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए, अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए, ऑल्सो कंपटीशन में रहने के लिए. बिकॉज एज यू सेड दैट एवरी नाउ एंड देन अ न्यू प्लेस इज ओपनिंग अप, सो यू ऑल्सो नीड टू कीप एडिंग दोज फ्लेयर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमेन इन दिस बिजनेस. तो ये एक बहुत अच्छा टूल है, एक बहुत अच्छा माध्यम है अगर आप इसको यूज करें तरीके से. नॉट too much reluctant on them also, otherwise they'll start taking benefits of you. They'll start taking unnecessary things. It is very important to be smart in what you do. मतलब वो अपना कमीशन ज्यादा भी ले सकते हैं. तो आपको केयरफुल रहना है, आपको अपग्रेड करना है अपने को. मतलब डोंट बी जस्ट F&B इज समथिंग ना जिसमें आपको हर एक मोमेंट पे इनोवेशन करना चाहिए. अच्छा. बिल्कुल करना चाहिए. आज के डेट में आपने ये बनाया तो आप उसी पे डिपेंड मत करो कि आपने ये बनाया. आप उसमें चीजों को ऐड करो, उसमें ऐसे ऐसे एंगल ले आओ जो माउथ वाटरिंग हो, जो बहुत टेस्टी हो, ताकि जो आपका कस्टमर है उनको भी लगे कि कुछ आज नया हो रहा है. एवरीवन लुक्स फॉर न्यू थिंग्स, अदरवाइज दे गेट बोर्ड आल्सो समटाइम. बट इज दैट द रीजन व्हाई हमने देखा है, अब जैसे कि मैं रहती हूँ लोधी कॉलोनी में, Correct. और मेरे आगे है मेहरचंद मार्केट व्हिच इज Correct. कॉल्ड द अल्टर ईगो खान मार्केट. वहाँ पे हर 6 महीने में एक नया रेस्टोरेंट खुलता है और हर 9 महीने में एक बंद होता है. तो ये रेस्टोरेंट्स क्यों फेल होते हैं, कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं? सबसे पहले तो क्या है कि SOP डिफाइन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है किसी भी चीज़ में. नॉट ओनली अबाउट रेस्टोरेंट बट एनीथिंग दैट यू क्रिएट. इफ यू लुक एट दुबई फॉर एग्जाम्पल, the SOP is so well defined that that you are hassle free in going to any place. India is still we are not into that kind of level where our SOP is defined, our hygiene, our licenses. It's very into that mode that is not very clear. So वो important है कि हमारे SOPs, हमारे standards, हमारे recipes, हमारे menu pricing, सब कुछ अच्छी तरह से डिफाइन होना चाहिए. क्या होता है, लोग जैसे हमने शुरुआत किया था कि लोग रेस्टोरेंट तो खोल लेते हैं लेकिन उसके नंबर्स सही नहीं होते हैं. आपने ये एज्यूम किया. अब नाउ वी आर इनटू कोविड एरा. यू आल्सो नीड टू इंश्योर दैट यू ऑलवेज कीप दिस इन माइंड दैट इट माइट हिट बैक. देन हाउ आर यू गोना सस्टेन? That is again an aspect which has to be thought out.
देन अगर वो दोबारा भगवान ना करे दोबारा आए, अगर आ गया तो फिर क्या करोगे, कैसे आप सस्टेन करोगे? जी जी। वो इम्पोर्टेंट है, ये टिप्स एंड ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए जब आप रेस्टोरेंट ओपन करते हो। लेकिन जब आप बात करते हैं SOP की, और मैं लोगों को समझाती हूँ, इसका मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है, उसकी कुछ गाइडलाइंस रखी हुई हैं, तो उनको फॉलो करना है। करेक्ट। लेकिन कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं दिल्ली भर में, अगर आप उनका किचन देखें तो बाप रे बाप, आप उल्टे पांव दौड़ेंगे, लेकिन फिर भी वो बेहद कामयाब है और चले आ रहे हैं Correct. अभी तक, बूमिंग बिजनेस। Correct. क्या राज है इसका? अब मैं अगेन मतलब आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट, बट यू नो इट्स माय ओन ओपिनियन दैट आवर हाइजीन एनालिसिस, जैसे हम लोग जो खाना बनाते हैं वो हैसब के अंतर्गत बनाना चाहिए। हाइजीन एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, वो इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में आपका किचन कोई भी गेस्ट देख सकता है, ऐसा प्लीज बनाओ आप। इनफैक्ट आई थिंक दुबई वगैरह में तो किचन एकदम रेस्टोरेंट के बाहर बाहर ही सामने होता रखते है, उसमें ऑडिट्स कभी भी हो सकते हैं, इतनी ज़्यादा पेनल्टीज हो सकती है अगर आप उस क्रिटिकल जो मैंने बताया उस SOP के अनुसार नहीं चलते हो। तो इंडिया में स्टिल वी आर नॉट इनटू दैट लेवल, बट थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड पोस्ट कोविड एरा, बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग एट हेल्थ, और हेल्थ वो गेस्ट को इतना, कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे भी बन गए हैं जो आप डाइनिंग टेबल में, आप अपने टेबल में बैठते हो, आपको एक कैमरा एक्सेस भी मिल रहा है जहां आप अपना खाना खुद बनते हुए देख रहे हो। अच्छा अच्छा। जी जी बिल्कुल, ऐसे भी कुछ रेस्टोरेंट्स ओपन हो चुके हैं। तो ये चेंजेस आ रहे हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं चीज़ों को बनने में, बट आई एम श्योर वन डे वी वुड गेट इनटू दैट लेवल व्हाट is required to ensure that whatever we are making, right from receiving to cooking to storing and to dispensing, is the entire cycle that needs to be followed. अब मैं आपसे एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछने वाली हूँ, और वो है हर हिंदुस्तानी के दिल की पसंद मिठाई। जब तक खाना मिठाई के साथ ख़त्म नहीं करो तब तक तो मन नहीं भरता है। Agree. अब दिवाली में बहुत मिठाई आई, त्योहारों पे खूब मिठाई आती है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसके बाद जब इतनी सारी मिठाई बच रही है, या सुबह मान लीजिए मंगलवार का दिन है, हनुमान जी के प्रसाद के तौर पे हम बूंदी और जलेबी ले आए, Correct. और अगले दिन सुबह वो थोड़ी सौगी हो गई, बच रही है, Right. तो ये लेफ्ट ओवर मिठाई की कुछ आज आप रेसिपीज मज़ेदार बताइए। लेफ्ट ओवर, पहले तो आप ऐसी चीज़ें बनाओ जिसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा है, जैसे मैसूर पाक। अच्छा। मैसूर पाक को आप 30 डेज आराम से रख सकते हो, अच्छा, कोई अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। ठीक है, बिल्कुल घी, तो वो जो इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है खाने के, जो मैदा वाली चीज़ें हैं ना, जिससे जलेबी है वो सौगी हो गया, तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप एयर फ्रायर में दोबारा डाल के उसको कड़क कर सकते हैं। करेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन वन टाइम कड़क होगा, नेक्स्ट टाइम प्लीज मत करें। यू नो इट शुड नॉट बी ऑल द टाइम दैट आपने हमेशा ये प्रोसेस बना लिया है, कोई भी चीज़ आएगा तो रख लेंगे फिर दोबारा खाएंगे। मेरे ख्याल से उतना ही लाइए जितना कंज्यूम हो जाए। अगर आप इसको से यू हैव परवल, ओके, और यू हैव करेला, सो आप इसको चीरा मार के इसके अंदर खोए की बर्फी को डालो, ठीक है, और अच्छा सा मखनी ग्रेवी के साथ, इट्स ब्यूटीफुल, बिकॉज दैट स्वीट एस्पेक्ट जो है ना इम्पोर्टेंट है, तो ये स्वीटनेस इससे आ जाएगा। तो आपका जो डिश है ना वो बहुत, थोड़ा चीज़ भी डाल दो इसके ऊपर, तो आई थिंक इट विल मेल्ट एंड इट विल लुक वेरी नाइस, लुक वेरी वेरी नाइस। सो आप यू कैन यूज डिफरेंट वेज। आप इसको, एक और मेरा रेसिपी है जिसमें मैं क्या बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ कोकोनट मिल्क पैनकेक। You know, pancakes, people really like pancake, especially kids again. They always look forward to making their mother, it's a feast when coconut milk, when pancake is made. So you make a nice pancake and then you make a mousse out of this, barfi. बर्फी का मूस बन सकता है? बिल्कुल। अच्छा। आप इसको मिक्सी में लीजिए, सिंपल है, नाम बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन प्रोसेस बहुत सिंपल है। तो आप इसको बर्फी को डाल दीजिए ब्लेंडर में, उसमें थोड़ा डालिए क्रीम, ओके, और ब्लेंड कर दीजिए, ओके, इट विल बिकम नाइस एंड सिल्की मूस, एंड देन यू पुट इट इन द पाइपिंग बैग एंड देन पुट इट नाइसली on the pancake and serve with some orange, because that citrus element is also quite nice, that khattapan, and then serve it. Tangy. वाह Yes. वाह वाह। अब एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये तो हो गई बात आपकी खोए की बर्फी की। Right. अब दिवाली में बाप रे बाप सबके घर में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आए हैं। Correct. अब ये ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं कि एक लिमिट में ही लेना चाहिए, Correct. इट्स नॉट वेरी हेल्दी।
अब ड्राई फ्रूट्स को अपने नॉर्मल दिन की सब्जियों में या पराठों में कुछ तरीका है में कंज्यूम बिल्कुल करने का? गुड गुड वेरी वेरी इससे गुड पहले कि वेरी खराब हो गुड जाएं। क्वेश्चन वेरी वेरी पहले तो अगर आपको ड्राई फ्रूट्स आता है इसको स्टोरेज अगर आपको स्टोर करना है तो डीप फ्रिज में स्टोर करें हाँ, अब मान लीजिए लोगों के घर में डीप फ्रीज नहीं है। नहीं है हाँ, ठीक है तो फिर आप हमें इसको बताइए कि इसको कंज्यूम वैक्यूम कैसे किया अगर आप जाए? इसको डब्बे के अंदर डाल कर रखें तो सील जो पॉलप्लेट के जार्स होते हैं वैक्यूम जार्स उसके अंदर रखें पहले तो इसके बाद आप जो नट्स है वो समोसे में डालिए हम्म, इट इज़ वेरी नाइस आई जस्ट मेड ए क्रैनबेरी समोसा अरे वाह, इट इज़ ब्यूटीफुल हाँ, हल्दीराम इज यूजिंग राइट नाउ ओके, you can find samosa bread pakoda you can do a nice layer that with this beautiful cranberry और काजू का पेस्ट बना के आप ब्रेड पकौड़ा की जो डबल लेयर करते हैं हाँ, हाँ, ना हाँ। उसमें आप बीच में लगा दीजिए अच्छा अच्छा, ठीक है देन ऑफ कोर्स यू कैन मेक ए नाइस हलवा ओके यू कैन मेक ए हलवा विद जैगरी सम हनी इन दैट और आप जैसे ही जैगरी हनी डालते हो तो ये बहुत ही इसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है अच्छा अच्छा, बिकॉज स्वीट और सॉल्ट से सेल्फ लाइफ बढ़ता है एक और चीज़ मैं जो अभी रिसेंटली बनाया मैंने च्यवनप्राश बना दिया अच्छा अच्छा, हाँ, ये ड्राई फ्रूट्स का? ड्राई फ्रूट्स का अरे वाह, जरा रेसिपी बताइए। So I am someone who likes to create Create, things which very are like creative and innovative. so I roasted dry fruits I took आंवला भी बहुत सीजन में आ गया है जो ड्राई वाला आंवला है वो ले लीजिए हनी ले लीजिए सारे स्पाइसेस ले लीजिए सिनेमन पाउडर कार्डमम पाउडर स्टार एनिस पाउडर जायफल, मुलट्ठी जायफल जवित्री सबका पाउडर डालिए और उसके बाद डालिए उसमें डेट्स और सबको मिक्स करके आप रख तो हो गया आपका च्यवनप्राश अरे रेडी वाह। हर रोज को खाली पेट पे मतलब एम्प्टी स्टमक हाँ, हाँ। it is absolutely phenomenal for your immunity and it is having abundance of health and मीठा भी लगेगा तो it will like it एक सिंप्लिसिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स के Right. साथ हम क्या अच्छी डिश बना सकते हैं? 100% and there is whatever again local is amazing local is exotic जो भी आपकी चीजें जो लोकल जैसे पनीर है पनीर इज ए चीज अच्छा, पर इट्स कॉटेज चीज। इट्स कॉटेज चीज इट्स हाँ। आवर ओन चीज लोग तो आजकल पनीर घर पे बनाते हैं तो आप उसको जहाँ पर आपको चीज जरूरत है आप उसको चीज को ग्रेट कर लो यू कैन ऑलवेज यूज लिटिल बिट ऑफ क्रीम एंड कॉटेज चीज एंड मेक इट beautifully emulsioned and then put your stuff in that and you can toss it and you can eat it ओके ओके, so it's absolutely a myth that you have to use expensive ingredient to create exotic food you can use local ingredient make your food more exotic than all those expensive ingredients अच्छा, और अब अंत में मैं चाहूँगी कि आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद यू टेलिंग अस वन रेसिपी फॉर अ क्विकी। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तो आप क्रॉकी अगर बना लें तो मेरे पास एक बहुत अच्छा रेसिपी है बीटरूट के साथ चुकंदर के साथ जिसमें हम चुकंदर को कद्दूकस कर लेते हैं उसको हम थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा विनेगर और थोड़ा शुगर के साथ पकाते हैं वो एक मार्मलेट बन जाता है और उसको आप उसके अंदर थोड़ा सा डालिए पनीर ग्रेटेड पनीर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और उसके बना दीजिए जस्ट क्रम्ब इट एंड फ्राई इट एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी न्यूट्रिशियस खट्टा मीठा भी टेस्ट आएगा और वो बहुत ही टेस्टी तो होगा देखिए बड़ी सिंपल सी बात थी चुकंदर की इन्होंने इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बताई। एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ बी वोकल फॉर लोकल, अपने मार्केट में अपने प्रांत की चीज़ें खरीदिए और उन्हीं को खाइए खिलाइए, यू विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू वंस अगेन, You are most welcome, Kim. Thank you. Thank you very much. It's such a pleasure. Thank you. Viewers and listeners, thank you so much. Thank you very much, Kiran. Thank you.